Good morning, class 5. I hope you all are doing fine. We will continue with our lesson number 6, air and water. We learnt about the components of air, which are oxygen, nitrogen and carbon dioxide. These are the most important gases. Nitrogen, which is 78%, carbon dioxide, which is carbon dioxide plus other gases 1%, and oxygen, which is 21%. And nitrogen is 78%. Okay, now I also told you about the other gases. Now what are the other gases present in the atmosphere? Helium, neon, krypton, argon, xenon, hydrogen, okay, ozone. All these are the important gases, other gases present inside the atmosphere. Now the properties of air, I told you about three properties, main properties that are given to you in the book. First is that air has weight. Second is air occupies space, that means air has volume, specific volume. And number 3, air exerts pressure. Okay, now what is atmospheric pressure? Anything that has weight and that is exerting pressure. Air exerts pressure in all directions. This is called atmospheric pressure. Okay, now next we will come to the new topic, that is layers of atmosphere. Now this is very important for you to know. Please read it carefully. Now layers of atmosphere, the thick envelope of air and gases that surrounds the earth is called atmosphere. What is atmosphere? The envelope of air, that means all the air that is constituted, all the gases that are surrounding the earth, this is called atmosphere. Now it can be roughly divided into 5 concentric layers. There are 5 layers of atmosphere. Okay, and they have got different characteristics. First one is, please see the diagram. First one is troposphere. The first one is troposphere. It is the lowest layer of atmosphere. It ranges from 0 to 12 kilometer, and it contains 75% of the gaseous mass and nearly all the water vapor. Okay, ट्रोपोस्फेयर आपका फर्स्ट लेयर है, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, जो रेंज करता है 0 to 12 किलोमीटर तक. It contains 75% of gaseous mass and nearly all water vapor. जितना भी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में देखते हो वो सब ट्रोपोस्फेरिक लेयर में पाया जाता है. इट इज़ द नैरोवेस्ट एंड द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. सारे लेयर्स में सबसे नैरो और सबसे डेंस लेयर है ये. It is a very important layer for human beings because it is closest to the earth surface. ना ह्यूमन बींग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है बिकॉज ये बहुत अर्थ के नज़दीक है. एंड ऑल द वेदर फेनोमेना अकर इन दिस लेयर. और जितने भी वेदर के चेंजेस होते हैं, चाहे वो हीट हुआ, चाहे वो कोल्ड हुआ, हॉट क्लाइमेट, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, रेनी वेदर, ये सब सारे आपके फर्स्ट लेयर में होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट विल कम टू स्ट्रेटोस्फेयर. Now what is the stratosphere? This layer lies above the troposphere and extends from about 12 to 50 km. It is made up of 80% nitrogen and 18% oxygen. Okay, तो ये layer जो है वो just above the troposphere है. This layer lies above the troposphere and extends from about 12 to 50 km. It is made up of 80% nitrogen and 18% oxygen. It protects us from absorbing the harmful ultraviolet radiation. It is made up of 80% nitrogen इसमें है और 18% oxygen है. It protects us from absorbing the harmful ultraviolet radiation. इसके अंदर कितना radiation है? Harmful ultraviolet radiation. This layer is also important because jet planes fly here owing to the high visibility. Now सारे jet planes इधर भी fly करते हैं इसी layer में. Okay. So stratosphere is a layer that lies above the troposphere and extends from about 12 to 50 km. It is made up of 80% nitrogen इसमें है and 18% oxygen है. It protects us from absorbing the harmful ultraviolet radiation. ये लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है harmful ultraviolet radiation से प्रोटेक्ट करने से.
दिस लेयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जेट प्लेन्स यहाँ पे ट्रैवल करते हैं. फ्लाई हियर ओइंग टू इट्स हाई विजिबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे हाई विजिबिलिटी है. नेक्स्ट वी विल कम टू मेसोस्फेयर. दिस इज़ द थर्ड लेयर दैट एक्सटेंड्स अबव द स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर. ओके, नाउ फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर ये लेयर ट्रैवल करता है, एक्सटेंड करता है, एंड ये थर्ड लेयर है. इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर. सबसे कोल्ड लेयर कौन सा है? मेसोस्फेयर. एंड इट बर्न्स अप द मीटियोर्स दैट स्ट्राइक्स द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस. और ये जितने भी मीटियोर्स गिरते हैं हमारे अर्थ पे वो उसको बर्न करता है. एटमॉस्फेरिक थर्ड लेयर में जब आता है ये मीटियोर्स किसी और प्लैनेट से, किसी और आउटर स्पेस से जब हमारे अर्थ पे गिरता है तो ये एटमॉस्फेयर का ये लेयर वो मीटियोर्स को ब्रेक करता है, बर्न अप करता है, ताकि हमारे अर्थ को नुकसान ना पहुँचे. थर्मोस्फेयर क्या है आपका? थर्मोस्फेयर इज़ द सेकेंड हाईएस्ट लेयर extending between 80 to 700 kilometer. This zone is completely devoid of water vapor and air pressure is extremely low है. यहाँ पर का एयर प्रेशर बहुत ही लो है. ओके, एंड दिस जोन इज़ कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ वाटर वेपर. इस जोन में वाटर वेपर बिल्कुल ही नहीं है. नेक्स्ट विल कम टू एग्जॉस्फेयर. द हाइएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स 700 to 10,000 kilometer and gradually merges into outer space. It mainly comprises the lighter helium and hydrogen gas, and no meteorological phenomena can occur in this zone. Most of the satellites that orbit the Earth are found here. तो इसमें बहुत सारे satellites पाए जाते हैं. Okay, it mainly comprises the lighter helium and hydrogen gas and no meteorological phenomena. Okay, तो it mainly comprises the lighter helium, इसमें हीलियम गैस है, एंड हाइड्रोजन गैस है, एंड नो मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना कैन अकर. कोई भी तरह का मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना इसमें नहीं आता है, प्रोसेस इसमें नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट जो हमारे ऑर्बिट ऑफ द अर्थ आर फाउंड हियर. जो हमारे अर्थ के जो सैटेलाइट्स हैं वो ज़्यादातर इसी में फाइंड आउट होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट विल कम टू द मैच द कॉलम. Please do it yourself. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay. Now next we'll come to the water. What is water? Now, water is the most abundant substance available on the surface of the earth. About 3/4 of the earth's surface is covered with water. In nature, it is found in all three states of matter: solid, liquid and gas. It is found in ocean, river, lakes and other water bodies. तो हमारे वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं. ओके, ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स. नाउ वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ. वी नीड इट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ग्रोइंग प्लांट एंड पुटिंग आउट ऑफ फायर. ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? वाटर इज़ फाउंड इन ओशियन, रिवर, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज़. एंड वाटर के 3 स्टेट्स हैं. एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड में आइस है, लिक्विड में वाटर एंड गैस में वाटर वेपर है. ओके, वाटर को यूज़ किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग पर्पस, वॉशिंग, क्लीनिंग, ग्रोइंग प्लांट्स एंड पुटिंग आउट फायर एंड मैनी अदर पर्पस. ओके, द मीन्स वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द फूड वी ईट, एंड वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड इन द फ्रूट जूसेस, मिल्क, टी और कॉफ़ी. तो आप देख सकते हो वाटर का कितना यूजेस है, राइट. द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर, हमारे मेन सोर्सेज कहाँ से पानी आते हैं? रेन वाटर, लेक्स, रिवर्स, वेल्स एक्सेट्रा. वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ इम्प्योर. ना ऑलवेज रिमेंबर, ये जो पानी है वो इम्प्योर है, उसे फ़िल्टर किया जाता है बिकॉज उसके अंदर सैंड है, जर्म्स है, स्टोन्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेकिंग इट अनफिट फॉर ह्यूमन बींग्स. इसलिए जो वाटर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होते हैं, ह्यूमन बींग्स के इनटेक के लिए होता है, जो हम लोग पी सकते हैं, उसे हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं. ओके, तो वो वाटर जो हम लोग पीते हैं फॉर वो जो हम यूज़ करते हैं अपने यूज़ के लिए, चाहे वो पीने के लिए हुआ, ओके, तो इसे हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं. वाटर हैज़ सम इम्प्योरिटीज़. वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है. इम्प्योरिटीज़ मतलब गंदगी, जो सॉल्युबल भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं. मतलब कि वो जल्दी से पानी में घुल भी जाते हैं और नहीं भी घुल सकते हैं, है ना. तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व इन वाटर. जो सॉल्युबल होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इनसॉल्युबल पानी में डिज़ोल्व नहीं होते. जैसे मड वगैरह आप देखोगे वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन आप स्टोन देखोगे वो इनसॉल्युबल है ना, वो डिज़ोल्व नहीं होते. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर.
प्लीज सी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या क्या है. वाटर इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड. ब्लड के अंदर वाटर है. वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. सॉलिड, लिक्विड, गैस में वाटर अराइज होता है. ओके, वाटर सॉलिड में क्या होते हैं? आइस. लिक्विड में होते हैं वाटर एंड गैस में होते हैं वाटर वेपर. Solid water is less dense than the liquid water and which causes ice to float on water. तो solid water जो होते हैं वो हल्का डेंस होते हैं, वो हल्के होते हैं, और लिक्विड वो स्टेट जो होता है वो भारी होता है. तो इसी की वजह से जो हल्के होते हैं वो पानी में फ्लोट करेंगे, राइट. दैट इज़ वाई हमारा जो आइस है वो फ्लोट करेगा पानी में, क्योंकि उसका डेंसिटी कम हो गया, उसका वेट कम हो गया, तो वो लेस डेंस होता है. ना वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स. वाटर के अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, याद रखिए, हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो रिमेंबर वाटर हैज़ गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. इसीलिए वाटर को हम लोग H2O कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, राइट. The molecule in water bond together and give rise to buoyant force that keeps the thing afloat in water. Now पानी के अंदर कोई भी चीज़ अगर फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब उसका डेंसिटी कम है, राइट. Now turn to the next page. वाटर इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस. वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है. इसका मतलब वो ना ही एसिडिक है ना ही बेस है. ना एसिडिक क्या होता है? एसिडिक होता है जब उसके अंदर एसिड के प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं, और बेसिक होता है जब उसके अंदर बेस की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है. नाउ आई विल टेल यू मोर डिटेल इन इट. आई विल गो इनटू डिटेल इन द नेक्स्ट टॉपिक. बट अभी आपने यूज़ के लिए याद रखे कि एसिडिक क्या होते हैं, जिनके अंदर एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा है और बेस के अंदर बेस का क्वांटिटी ज़्यादा है. सॉल्टी हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं हम लोग. तो वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है. वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है. ना इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में यूज़ होता है. ये सॉल्वेंट है, लिक्विड है. सॉल्वेंट मतलब लिक्विड है. कौन? वाटर. ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी डिजॉल्व. कुछ भी पानी में डिजॉल्व हो सकता है. व्हेन अ सब्सटेंस डिजॉल्व फुल इन सॉल्वेंट अ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड. ना कोई भी सब्सटेंस जब हमारे सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए, हमारा सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है? पानी है, राइट, वाटर है. तो अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पानी में, वाटर में जो सॉल्वेंट है उसमें अगर मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, उसके हम लोग सोल्यूशन कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन. और ये सब्सटेंस जो है वो हमेशा सॉल्युबल कहलाता है, क्योंकि वो पानी में घुल गया है. दैट इज़ वाई वो कॉल इट इज़ कॉल्ड द सब्सटेंस विल बी कॉल्ड सॉल्युबल, एंड द सोल्यूशन जो होता है उसे सोल्यूशन कहते हैं. Okay, now please do the next exercise yourself. Water is very essential for dash of life. Dash is the main source of water on earth. Water is a universal dash. Dash water is fit for consumption, human consumption. Okay, now we'll move to the next topic. I want all of you to please do the 2 exercises, which is being small exercises which are given to you. 3 exercises, right? Now do it yourself. Write them down in a science notebook. In the next class we will continue further. Thank you so much, children. Have a nice time.